Okay, Renu says student studying in second year. All right. Kindly key in your details fast and we'll start the session. Okay. I think we have had enough responses. So let's start off with the session. Okay, Shirisha, doing BTech, wonderful. So let me start the session by first of all introducing myself to you because I will be the one whom you will be seeing more often in the sessions because I am your course mentor and I'll be taking you through this basic English course till the end. All right. So let me introduce myself first. I am Nikhil. My full name is Nikhil Devedi. I have a business degree in management, and I have been associated with the training industry for past so many years, and have been training a lot of people from various industries that include banking industry, insurance industry, and real estate industry, and quite a substantial time has been spent with the fitness industry as well, wherein I had been teaching the candidates about spoken English, the grammatical betterment, and in English in general. Because I mean, I presume all of you would be knowing this fact that English, though, is a bridge language, but is very essential for you to understand because a lot of things are actually dependent on the way you understand the language, the way you interact with people through the use of English language. It being the bridge language makes it imperative for all of you to understand, communicate, and speak well in English because uh, you may be knowing a lot of things, but if you're not able to communicate those those things, that knowledge, your understanding properly to the person in front of you, then the complete understanding and knowledge of whatever line or a subject for you goes waste. If the person standing in front of you or the group of people you are standing with does not understand what you're saying, or if your point of view is not communicated well enough to them, then the whole effort goes waste. All right. So we at Million Lights have introduced this particular course, which is Excellence in English, Basics of Grammar Part 1. It is essentially designed keeping in mind those students who want to understand the basics and then build upon it. All right. Like we say, a building which has got a good foundation is very strong. It can withstand any kind of a pressure, be it, there are so many earthquakes and all, wherein a lot of big buildings, have the cracks in it. But had the foundation been strong enough, the building can withstand any kind of a pressure, any kind of natural calamity. All right. So keeping this in mind, we have brought upon this particular course, which is Basics of Grammar Part 1. All right. Especially for those students who want to have their basics in right place, because once your basics are done, then you can build upon it at any given point in time. Because if you look at English in a in a layman sense, then there are three essential parts of it: the basics, the intermediate, and the advanced English. All right. So this being the basic English is designed especially for all of you who want to understand the English from the basics, from the scratch, from the root. All right. Because if your roots are strong enough, the whole tree can withstand any kind of a natural pressure. Okay. So, this being the first session, I would not put in much pressure upon all of you. I'll keep it a light session wherein we'll understand how to make the best use of the learning management system that we have put in place, and what all will be done, what all is expected from us, and what all is expected from you, students. Okay. So, first of all, I want to understand how many people are able to see what is being shown in the screen for you.
What is written over there? You can see a certificate over there. Very nice. So this particular certificate is for those students because with this being the session that we are sitting at this point in time is a free session. All right. In free session, there will be a lot of things that will be covered, but without the certificate. All right. So certificate, there could be a possible question from you that what is the purpose of certificate? Why certificate? What is the use of a certificate? So let me tell you that certificate is a guarantee, is an appreciation that the student has done a particular course for which he or she has spent the required amount of time, for which they have given in their effort, and in lieu of that they have been awarded a certificate which states that they have completed the course in due time and with proper marks, right? So this particular certificate will be available for those students who would be enrolling in the that will be a paid course, for which we'll discuss about it later. But so this is the certificate wherein those students who will be enrolling in the paid course will be given this. All right. So first of all, let me take you through to the basic use of the learning management system that we have in place for you all, so that you can actually make the best use of it. I'll do a screen share just now. Just message me in the text box that if you can see my screen. Okay, great. So when you log into the system would look like this for you. Okay. Millen Lights MLBE English free course. Okay. The moment you log into it, there will be these many tabs over here. If I could just put it back, these will be the tabs over here. Then this will be for the course. Then you will see the discussion forum, wherein the discussion tab. If you click the discussion tab, then there are a lot of discussions going on. That what is expected from the course, what is a basic course, and all the topics over there, like common noun versus proper nouns, importance of good vocabulary in English, what is the role of attributive and predicative adjective, what will you actually learn in the system. So there is a discussion forum wherein you can put in your points, whatever you want to have a discussion on. So I would request you all to make the best use of this discussion tab, because it's very essential for you, because we also want to know what all is going inside your head, because a lot of students have this habit of not sharing in the live sessions or in the live class. They have this habit of going after the teacher after the class. Yes, sir, or ma'am, I have this kind of a confusion or a doubt. Can you please clarify? So for for such a situation, we have created this discussion forum, because there could be a present where you would have thought that, okay, I wanted to ask a particular doubt, but I actually forgot to ask it in the session. So you can put in your doubts, your queries in the discussion forum, wherein we'll have a discussion over it. And if it being a potent enough discussion, we'll use this particular thing in the live class. All right. Then the third tab comes, which is for recording of lectures. So whatever the lectures, the live session that we are going on, we have recordings of all those sessions in here. So you can actually go back in your in your free time, have a look at that to clarify any of your confusions, okay, in this recording of lectures. And you can also, then there comes the fourth tab, wherein you can actually see your progress, what all have you been doing,
there are various tests after completion of every topic, then you can actually go and see what all you have done, what all has been your performance so far, what has been your progress so far. You can go and see that in the progress tab that is provided here. So there are 4 major tabs that you need to look at every time. Okay, whenever you log into the system: the course tab, the discussion tab, the recording of lectures tab, then your progress tab. Okay, the 5th one is a tab for instructors. That's for me. So you won't be seeing that in your interface. And now coming back to the course tab, once you click into the course tab, then these are the things that you will be seeing over there. First of all, the introduction about the course, who all can in. Then there is a course calendar, which will actually indicate you when and what time would the classes be conducted about the course. Then there is video. You can actually see me as well over there. About me, I think I should spend a little bit of time over here. You can see me over there. You can see and see what my background is and what all I have been up to for the past several years, what I have been doing. Okay, you can go and see there also if you want to know more about me. Then there is this basics of English tab. The moment you click, you'll get a video, then benefits, then itsy bitsy things over there, which will help you to understand how the flow of the course will go. Okay, these are the basics parts. Then we'll come after the initial 3 tasks. The moment you click open them, then you will come into the major parts. Okay, these are the parts of speech. We'll discuss about the parts of speech, how essential they are, what is the importance of parts of speech in the English grammar. Okay, then there are these many parts of speech over there. Then once we complete all these things in the sequential order, in the proper order, starting from here: basics of English, word formation, forming of new words and their opposites, synonyms, and otherwise otherwise we'll call words and their opposites as synonyms and antonyms, word object identification, so on and so forth, parts of speeches. Then we conduct the tenses. Then there is this assessment for you to do. Okay, and one more thing. Suppose I say somebody has switched on their. I would request to please switch off the mic. Somebody has switched on the mic, huh? Let me get back to that. Okay. See, video about the nouns, then the review questions. I'll just click on that. Okay. After the completion of every topic, there will be such kind of review questions. Okay, to check your understanding. After the end of every topic, you will get such kind of review questions for you to check whether you have understood them properly or not, and then we can actually have a separate session on doubt clearing on these topics. Suppose I say I want to study verbs. It is a self-paced course, all right, which you can actually in your comfortable time go and study. All right, the live sessions are designed keeping in mind that an interactive session makes much more sense than a static session, a self-paced static session that a lot of websites are doing. But we as a differentiator have this live session, weekly live session. We have 2 sessions per week. Okay, and if required, we'll conduct more sessions. That depends entirely upon the students' requirements, how and when they want. Okay, so options are open. So as of now, we have got 2 live sessions every week, and we can conduct more live sessions provided students want that. So it's a democratic setup wherein students can actually voice their opinions. But for that to happen, you will have to use this discussion forum over here, put in your queries, put in your requirements that you want such and such extra session for so and so topic. All right, so make the best use of the available resources at hand. Okay,
So say if you were to click verbs, then there will be a video available for verbs. Okay, it will explain to you about what verbs are and what are the rules that should be followed for it. Then there is this another tab under verbs that is for review questions. So whatever you have understood, it is for all topics over here. Okay, so whatever you have understood, practice upon all these available review questions to see if you are getting them right. Because if you would have understood properly, then definitely you would get all the practice questions right. Okay, so make the best use of the available resources. And if you have got any kind of a doubt anywhere through the learning module, then you can actually come back and put in your queries in the discussion forum tab that is available here. All right. You can put in whatever you are thinking of, whatever your doubt could be, if you would have forgotten in the class, or maybe if I would have missed upon the queries that you have made, because there are a lot of users over here, a lot of learners over here. निखिल जी क्लास ऑनलाइन रहेगी? हेलो जी निखिल जी, ये पूछ रहा हूँ, आप ये जो इंग्लिश क्लास ऑनलाइन रहेगी? ये क्लास के सेशन जो है ये हमारे हफ्ते में 2 बार ऑनलाइन रहेंगे। अच्छा, बाकी की क्लास ऑफलाइन ही रहेगी ना? बाकी क्लास के लिए आपके पास क्वेश्चन में पूरा एंटर है, आप अपनी क्वेरी अगर इसमें चैट बॉक्स में डालें तो बेहतर रहेगा, तो कितनी सारी आवाजें। जी बिल्कुल ना, ओके, हाँ सर। So my sincere request to you all, whatever your queries be, please put it in the message box. I don't mind if you put it in English or in Hindi or whatever, okay? Because the basic idea is to help you get your basics done in the best concrete manner possible. All right. So like some user had asked a question that these classes would be online or not. So, okay. Let me put it in a blend of English and Hindi. Okay. So I will communicate for the next part in Hindi. Okay. For all you understand. See, ये जो सेशंस हमने ये पर्टिकुलर प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो लर्न बेसिक्स ग्रामर बेसिक्स का जो प्रोग्राम हमारा लॉन्च हुआ है, ये बेसिकली उन लोगों के लिए लॉन्च हुआ है जो लोगों को इंग्लिश आती तो है समझने में, बट उसको ठीक तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। कम्युनिकेट नहीं कर पाने के पीछे रीजन है बहुत सारे, और वो रीजन ऐसे हैं कि आपको क्लैरिटी नहीं है कि कहां पर क्या यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है। क्योंकि बेसिक्स में, अगर मैं बार बार बेसिक्स की बात इसलिए आ रही है क्योंकि सारा खेल बेसिक्स का ही है। जरूरी नहीं है कि आप जैसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में आप बहुत डिफिकल्ट सम सॉल्व कर लेते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है आप क्लास में बहुत अच्छे स्टूडेंट बन गए। द आइडिया इज दैट कि यू शुड बी एबल टू, आपको सारे सम्स सॉल्व करने आने चाहिए, सिर्फ डिफिकल्ट सम सॉल्व के लिए नहीं है। डिफिकल्ट सम सॉल्व के लिए तो मतलब तो एक फ्लूक में हो गया, मतलब तुक्के में हो गया। ओके, मतलब क्या है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के रूट्स और बेसिक्स पूरी तरह समझ में अगर आते हैं तो आप उससे रिलेटेड किसी भी लेवल का क्वेश्चन या सम आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इंटरमीडिएट लेवल का भी सॉल्व कर सकते हैं, एडवांस लेवल का भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो ग्रामर बेसिक्स का जो हमारा ये पर्टिकुलर कोर्स है, ये डिजाइन इसी तरीके से किया गया है कि आप सबके डाउट्स हो, जो बेसिक्स में प्रॉब्लम्स है वो सब क्लियर हो जाए। कि प्रॉब्लम किसी के साथ ऐसी नहीं होती उनको नहीं आता कोई सब्जेक्ट, या इंग्लिश को अगर हम ऐसा सब्जेक्ट लेके चलें, ठीक है, कि नहीं हमें इंग्लिश नहीं आती, ऐसा नहीं है। हम लोग का नेटिव लैंग्वेज डिफरेंट है, हमारा नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि हमने जितना टाइम अपनी नेटिव लैंग्वेज में स्पेंड किया उतना हमने इंग्लिश में स्पेंड किया नहीं, इस वजह से क्या है कि हमारा जो टच है, जो फ्लो है, वो छूट जाता है। जैसे कि बहुत बड़े प्लेयर्स की अगर हम बात करें, जैसे आजकल क्रिकेट का भी थोड़ा फीवर चल रहा है, ठीक है, पीपल आर नाउ फ्लॉकिंग टू द ग्राउंड दैट वी हैव ऑल दिस लाइव इंटरनेशनल क्रिकेट गेम्स हो गई है। तो अभी कई बार आपने बातें सुनी होगी वहां पर कि लोग कमेंटेटर्स क्या बोल रहे हैं बार बार कि हाँ
बहुत दिनों से लॉकडाउन हो रखा है, तो प्लेयर्स खेल नहीं पा रहे थे, प्रैक्टिस कर नहीं पा रहे थे, तो दे हैव लॉस्ट देयर टच, ठीक है ना। तो अभी वो इफ द प्लेयर्स हैव लॉस्ट देयर टच, देन हाउ दे कैन रीगेन दैट? वो क्या है कि आप रूटीन प्रैक्टिस करो, अगेन वापस बेसिक्स पे जाओ, ठीक है, वही नेट प्रैक्टिस पे फिर से आओ, प्रैक्टिस करना शुरू करो, जिससे कि इसको बोलते हैं ना गेम प्रैक्टिस आ जाती है। उसी तरीके से हमारा क्या है कि हमने इंग्लिश कहीं ना कहीं तो पढ़ी है, क्योंकि इंग्लिश का सब्जेक्ट हमारे पास हमेशा रहा है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में रहे हो तो इंग्लिश है ही है, अगर आप हिंदी मीडियम में भी रहे हो या फिर अपना कोई भी लोकल एजुकेशनल मीडियम रहा होगा आपका लैंग्वेज का, तो वहां पर इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट हमेशा से रही है, चाहे कोई भी बोर्ड हो, हिंदी मीडियम का हो या आपका कोई भी मीडियम का बोर्ड का स्कूल रहा हो, वहां पे इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट हमेशा से रहा है। बट हमने उसमें कितना टाइम स्पेंड किया वो बहुत मैटर करता है, ठीक है ना। इस वजह से हमारा जो टच है वो छूट गया है। तो जब हम सामने आते हैं, जब हम बैठते हैं, बात करते हैं, तब क्या होता है कि हमारा, क्योंकि बेसिक्स में हमारा कमांड नहीं है, ग्रामर में हमारा कमांड नहीं है, तो कई बार क्या होता है कि जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमारे जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो गलत हो जाते हैं। उसकी वजह से हमने बोला कुछ और सामने वाले ने समझा कुछ, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम्स होती है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो, that we have brought upon this particular course, so that you don't have to face such kind of embarrassment where you are saying something and the individual in front is understanding something else, because the way you present your thoughts, आप जिस तरीके से अपने ख्याल प्रेजेंट करते हैं सामने वाले को, वही मैटर करता है मेक और ब्रेक का सिलेक्शन और ना सिलेक्शन होने का। कई बार ऐसा भी होता है कि आप 4-5 लोगों के ग्रुप में बैठे हुए हैं और मेरे ख्याल से मैं ऐसा बैठा हूं कि अरे ये लोग तो बड़ा अच्छे से बात कर रहे हैं आपस में, बट देन अगेन जब बात मेरी आती है तो आई एम नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट वेल इनफ टू इन द डिस्कशन। वो जो डिस्कशन हो रहा है उस डिस्कशन में मैं अच्छे से कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूं। कंट्रीब्यूट क्यों नहीं कर पा रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर बोलूंगा अभी, मुझे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है आपके अंदर बोलने में? क्योंकि आपके पास कम्युनिकेट करने का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप कम्युनिकेट प्रॉपर्ली कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपको जो चीज फ्रेम करनी प्रॉपर्ली, हम लोग से प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोग जो अपना प्रोसेसर है जो हमारा, ठीक है ना, वो सोच रहा है हमारी नेटिव लैंग्वेज में, ठीक है, फिर उसको हम कन्वर्ट करते हैं दूसरी लैंग्वेज में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग लिटरली ट्रांसलेट कर लेते हैं, लिटरली ट्रांसलेट करते हैं, मतलब कि जैसा सोचा वैसे ट्रांसलेट कर दिया। तो सोच तो हमारी नेटिव लैंग्वेज में, ठीक है, ट्रांसलेट करना किसी और लैंग्वेज में, तो होता क्या, इसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन एरर। अब कम्युनिकेशन एरर क्या होता है कि जैसे बोलते हैं ना कि अर्थ का अनर्थ हो जाना, ठीक है, कि आपने बोला कुछ और सामने वाला कुछ और ही समझ के चला गया, फिर आपने तो अपने मन में समझ लिया कि मैंने सही समझाया और सामने वाला इंसान को कुछ और समझ में आया, फिर क्या हुआ प्रॉब्लम कि उसको तो कुछ भी नहीं समझ में नहीं आया था, आपने कुछ और कहा, उसने कुछ और समझा, कुछ और हो गया, फिर अल्टीमेटली होगा क्या कि डांट आपको पड़ जाएगी कि मैंने तो, आपने कुछ और ही समझाया, तो आप बोलो नहीं मैंने तो सही समझाया। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज बिकॉज यू थॉट दैट यू हैड एक्सप्लेन्ड द थिंग in the exact fashion as you thought in your mind, but the person in front of you understood the thing in some other sense because you were not able to communicate whatever you wanted to communicate in the right sense. तो वहां पर ये प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें हैं, इनको रिजॉल्व करने के लिए ये पर्टिकुलर सेशन रखे गए हैं, और ये सेशन जो है ये हफ्ते में 2 बार लाइव होंगे, ठीक है। हर टॉपिक में हम लोग प्रॉपर टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आप सिर्फ रीड थ्रू करते चले आते हैं, तो रीड थ्रू करने से वो सेंस नहीं आता जितना कि आप एक डिस्कशन में कर पाते हैं, ठीक है। या फिर कई बार क्या होता है कि आपका कोच, आपका टीचर, आपका मेंटर जो समझाता है वो आपको सही तरीके से समझ में आ रहा है रादर देन रिटन चीजें। क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो मार्केट में तो बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं इंग्लिश रिगार्डिंग, आप मार्केट में कोई भी बुक उठा सकते हैं, आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है। बट द इशू इज दैट कि आपने क्या पढ़ा और क्या समझ में आया, उसमें बहुत डिफरेंस है। हमारा यहां पर हम लोग वी एट मिलियन लाइट्स have this thing that we want to help you build more confidence, have more understanding of the particular subject that you are enrolled in, ठीक है। So we at Million Light want you to understand the basics correctly
for whatever the topic be. Okay, somebody saying that my voice is breaking. It could be the issue for the network issue. I can't help in that, but still I would repeat whatever I just said. Okay, Kamar Ashraf just said that the voice is breaking. It could be the network issue. I can't help in that. But then again, you will be provided with the recording of this particular session. This being an introductory session, okay. So I won't dwell much more detail into it. We'll start from the proper session from the next section onward. One more thing, next session जब भी होगा उससे पहले आपके पास ईमेल पहुंच जाएगा और लिंक पहुंच जाएगा जिस पर्टिकुलर लिंक से आपको सेशन अटेंड करना है, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लो, व्हाटएवर बी द सेशंस आपको उसकी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, ठीक है। तो जो मैं कह रहा था कि एक इंटरैक्शन बहुत एसेंशियल होता है। रात एक स्टैटिक बुक से अगर ऐसा होना होता तो मेरे ख्याल से इतने सारे स्कूल्स और इतने सारे जो हम लाइव सेशंस करते चले आ रहे हैं, हम लोगों ने वैसे बहुत सारे लोग हेल्प करा है। मिलियन लाइट्स में हम लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट्स को और लर्नर्स को हेल्प करा है उनके डाउट्स क्लियर करने में, उन्हें एक बेटर इंडिविजुअल, एक कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल बनाने में, ठीक है ना। तो ये वीडियोस आपके पास मिलेंगे, ठीक है। और एक चीज और मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा, ठीक है। एक छोटा सा एक प्रेजेंटेशन है, मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली बनाया है, तो मैं उसको लोड करता हूँ, आपके साथ शेयर करूंगा मैं, ठीक है ना। और फिर हम लोग और डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। सेशंस के बारे में थोड़ा सा मैं भी आप लोग ये बता दूं कि सेशंस जब भी होंगे उससे पहले आप लोगों के पास एक मेल पहुंच जाएगा सेशन का, डेट के साथ, टाइम के साथ और लिंक होगा उस पर्टिकुलर मेल में, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे आप लोगों से जानना चाहूंगा, फॉर ऑल यू प्रेजेंट इन द सेशन, व्हाट वुड बी द आइडियल टाइम फॉर यू टू कम ऑनलाइन, फॉर यू ऑल टू कम ऑनलाइन and for us to conduct the live sessions? What would be the ideal time according to you? We'll have this would be a democratic process wherein the majority number जो होगा हम उसी पर ही करेंगे, ठीक है ना। तो जो सेशन है अभी, जैसे आज हमने 11 बजे का सेशन किया है, तो अगर आपके लिए 11 बजे परफेक्ट है तो आप लोग 11 बजे करो, या अगर आपको लगता है कि इवनिंग का 7 PM का टाइम है, स्पेसिफिक टाइम्स होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने बोल दिया, वो हमें इसको डेमोक्रेटिक प्रोसेस लेके चलेंगे, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा काउंट जिस पर्टिकुलर टाइम के लिए आएंगे हम उसी टाइम पे ये लाइव सेशन अटेंड करेंगे, क्योंकि बेसिक आइडिया हमारा यही है। देखिए बार बार बेसिक की बात आ रही है, देखिए बेसिक इतना इंपॉर्टेंट है कि बेसिक की बात बार बार आ रही है। सी द बेसिक आइडिया इज दैट एवरीवन शुड बेनिफिट फ्रॉम इट। ऐसा ना हो कि आप कि कोई बेनिफिट कर गया, कोई बेनिफिट नहीं कर गया, कोई 11 बजे आ गया, सपोज हमारे पास बहुत सारे नंबर ऑफ, आई एम वेरी हैप्पी and I congratulate you all that you have taken this decision that you want to learn English from the basics, which is a very good thought from all of you. So ऐसा भी ना हो कि आपने जो प्रोसेस स्टार्ट करा है अपने माइंड में कि हाँ मैं सेशन अटेंड करेंगे, तो आप लोग इसको ना जो मैंने अभी आपको दिखाया था वहां पर जो हमारा लर्निंग मॉड्यूल है उसमें जो डिस्कशन फोरम है, उस डिस्कशन फोरम में जाकर के प्लीज आप लोग अपने रिस्पॉन्सेज डालिए कि किस टाइम पर चाहिए, या फिर आपके पास जो मेल आई है उस पर्टिकुलर मेल पे जाकर के आप वो टाइम स्लॉट्स एंटर करिए जो टाइम स्लॉट्स आप चाह रहे हैं कि उस टाइम स्लॉट में होना चाहिए। और क्योंकि मैंने पहले ही बोला था ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, तो हम उसमें जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सेस टाइम स्लॉट के आए होंगे हम उस पर्टिकुलर टाइम पर अपने सेशंस अटेंड करवाएंगे आप लोगों को, वो सेशंस उस वक्त ऑनलाइन होंगे, ठीक है। तो जो डेमोक्रेटिकली सिलेक्टेड टाइम होगा, जैसे अभी 2 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, एक ने 2 PM आफ्टर 2 PM बोला है, बट यू हैव नॉट क्लैरिफाइड योरसेल्फ व्हाट आफ्टर 2 PM। अशरफ हैज सेड दैट आफ्टर 2 PM, आई डोंट नो व्हाट आफ्टर 2 PM, तो 3 PM भी होता है, 4 PM भी होता है, तो बहुत सारे PMs होते हैं। पूजा ने बोला 10:30, परफेक्टली एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो you can actually key in your responses that for the time slot that you want the live session to be in the email that you have got from our side and in the discussion forum as well, okay। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। एक छोटा सा सेशन अभी मैं एक आपके लिए प्रेजेंटेशन बनाया मैंने, मैं उसको अभी आपके लिए लोड करता हूँ। लगता है नेटवर्क में देयर इज सम सीरियस प्रॉब्लम हियर। हो रहा just wait for a moment, the presentation is just getting uploaded. All right, so presentation is on. Okay, okay, कुछ और responses भी हमारे पास, but anyway, एक ये छोटा सा मैंने आप लोगों के लिए presentation बनाया है, this being the first session,
तो उसको ज्यादा हैवी नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा लाइट रखेंगे। एक्सपेक्टेशंस क्या है, क्या क्या आपको होना चाहिए, आपकी इंग्लिश बेटर करनी है तो उसके लिए क्या क्या नोट्स है, मैंने आप लोग स्पेशली बनाया है सेशन, ठीक है। तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा, इसकी भी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ऑलराइट, सो अगर ये आपको दिख पा रहा है तो प्लीज गिव मी थम्स अप। Please give me a thumbs up if you can see this presentation at your end. लगता है कि नेटवर्क का इतना ज्यादा इशू है कि रिस्पॉन्सेस स्लो हो रहे हैं। सिर्फ एक ही किसी का है। आप फॉर दोज जो लोग भी इसको सेशन, अगर आपको स्क्रीन नहीं दिख पा रही प्रॉपरली तो एक बार ना एग्जिट करके वापस से एंटर करिए। ओके, if you're not able to see this presentation or screen properly, my sincere request is that kindly log out and re-log in. Okay, there could be a network buffering that because of which you're not able to see the screen. Okay, so I need more responses. There are a lot many people in the session here, but I think there are only few people who are more active than the others. लोग ज्यादा हैं बट रिस्पॉन्सेस लो हैं, ऐसा क्यों? ओके, चलो 4-5 लोग आ गया। ठीक है, एक रिस्पॉन्स और आ रहा है, उसका वेट कर लेते हैं जस्ट, फिर मैं तुरंत अपना प्रेजेंटेशन आपके लिए स्टार्ट करता हूँ। ऑलराइट, ओनली ऑडियो ऑप्शन, कैर नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम। इसका वीडियो आपके पास मिल जाएगा, उसमें देख लीजिएगा फॉर दोज नॉट एबल टू सी द स्क्रीन। ओके, सो ये जो मैंने आप लोगों ने स्पेशली बनाया ये पर्टिकुलर है कि हाउ टू लर्न इंग्लिश इफेक्टिवली। सबसे बड़ी बात देखिए, जो मैं अभी बोल रहा था आपसे ना, कि अगर बुक्स अपने आप में ही कंटेंट होती पूरी की पूरी, तो मेरे ख्याल से कोई स्कूल या कोई भी लाइव क्लासेस या ई लर्निंग नहीं चल रही होती इस तरीके से, ठीक है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, लॉट ऑफ टाइम दैट हैपेंस दैट because you are not so well versed with the language that you just read through it, आप सिर्फ पढ़ते चले जाते हैं, उनको अब समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, ठीक है ना। मतलब क्या है, पर्टिकुलरली जो मैं आपके सामने जो पर्टिकुलर स्लाइड चल रही है इसमें क्या है कि हाउ टू लर्न इंग्लिश इफेक्टिवली, ये बेसिक आइडिया है जो हमने यहाँ पे जो कोर्स हमने स्टार्ट करा आप लोगों के लिए स्पेशली, उसका बेसिक आइडिया यही है, हाउ टू लर्न इंग्लिश इफेक्टिवली। उसके लिए क्या है कि बेसिक्स अच्छी होनी चाहिए, योर बेसिक्स मस्ट बी राइट, बेसिक्स मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, रूट्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए आपके, ठीक है ना। फिर तो आप कुछ भी सीख जाओगे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। आपका बेसिक अगर अच्छा है तो आप आगे इंटरमीडिएट लेवल पे भी एनरोल करेंगे, फिर उसके बाद एडवांस लेवल के भी इंग्लिश में जाएंगे। अभी मैं सीधे सीधे एडवांस लेवल में आपको एक्सपोज कर दूं तो अचानक से क्या होगा, क्योंकि अगर बेसिक्स क्लियर ही नहीं है तो एडवांस लेवल आप कैसे समझेंगे, ठीक है ना। तो यही है जो सबसे पहला स्लाइड है जो कह रहा है हाउ टू लर्न इंग्लिश इफेक्टिवली। अपने एंड पे हमारी तरफ से जो एफर्ट्स है वो तो रहेंगे, बट वो एफर्ट जो हम आपसे चाह रहे हैं वो क्या है, वो ये है कि बुक्स रीड करिए सबसे पहली बात तो, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी आपसे बोला, बुक रखी हुई आपके सामने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एफर्ट डाल करके बुक को पढ़ना पड़ेगा। ऑलराइट, यू विल हैव टू रीड द बुक, यू विल हैव टू पुट इन योर एफर्ट। ऑलराइट, you will have to go to the learning module to make the best of best use of the available resources, ठीक है। ये चीज हो गई, सिर्फ बुक आपके सामने रखी से कुछ नहीं। जैसे यहाँ पे वही बोल रहा है कि सिटिंग एट ए टेबल लुकिंग एट योर नोटबुक से कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपका माइंड एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहिए। बुक को देखते जा रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार क्या होता है ना, आप कभी नोटिस किया होगा कि हमें मूवीज की स्टोरीज याद रह जाती हैं, लेकिन किताब में जो हमने पढ़ा वो याद नहीं रहता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम विजुअलाइज कर रहे होते हैं सामने। विजुअलाइजेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो अभी हम आगे देखेंगे इसमें, ठीक है। फिर दूसरा तरीका क्या होता है आपका, देखिए, छोटे छोटे नोट्स लिखना शुरू करिए। जो आप देख रहे हो डेली में कुछ भी लिखिए, गलत लिखिए, नो प्रॉब्लम, राइट इट डाउन, बस लिखिए, चेक करिए, फिर हमारे साथ चेक करिए कि मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा।
फिर जो सही करेक्टेड वर्जन होगा उसको फिर से लिखिए, ठीक है ना, अपनी आइडियाज, अपने थॉट प्रोसेस को। द आइडिया इज दैट कि थॉट प्रोसेस भी आपका उसी लैंग्वेज के हिसाब से चलना चाहिए जिसमें क्या बोलना चाह रहे हैं। कन्वर्जन नहीं होना चाहिए, दैट यू आर थिंकिंग इन सम अदर लैंग्वेज, राइट, एंड यू आर सेइंग इट, कन्वर्टिंग इट इन अदर लैंग्वेज एंड सेइंग द सेम। वहां पर कम्युनिकेशन एरर हो जाता है, ठीक है ना। छोटे छोटे नोट्स लिखिए डेली प्रोसीडिंग्स के, सुबह क्या क्या किया आपने, क्या क्या देखा, उसके छोटे छोटे नोट्स बनाइए, उनको लिखिए, फिर बाद में उसको बना करके फिर से रिकॉपी करिए, फिर से करेक्टेड वर्जन लिखिए, ठीक है ना। फिर आपका आता है सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स, you have to promise me that you will be reading a book every time. Make it a point कि आप 30 minutes read कर रहे हो every day. Read any book, any small book, all right, in English. It has to be in English, okay? Read any kind of a book in English. It must be an educational notebook, okay? It should not be a gossipy notebook, you market में available होती है movies and all that. हालांकि नहीं आ रही। सबसे बेस्ट चीज क्या होती है कि अगर आपके पास बुक भी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप न्यूज़पेपर रीड करिए इंग्लिश का, ठीक है ना। उसमें जो भी चीजें आप बुक में रीड कर रहे हैं, छोटी छोटी नॉवेल्स होती हैं, उनको रीड करिए, तो उसमें जो आप पढ़ रहे हैं ना उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करिए माइंड में अपने। इससे आपका विजुअलाइजेशन प्रोसेस बिल्डअप होता है, ठीक है ना। और ऐसा होना चाहिए कि जो भी चीज आप रीड कर रहे हो बहुत डिफिकल्ट वाली नहीं होनी चाहिए, एंट्री लेवल की, बेसिक लेवल की बुक होनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर आपको बेसिक्स की बात कर रहे हैं। अभी आप एडवांस लेवल रीड करने लग जाएंगे तो आपका पूरा जो कम्युनिकेशन गैप है ना वो हो जाएगा, आप पढ़ कुछ और रहे हैं, समझ कुछ और रहे हैं, ठीक है ना। और उसमें एक चीज और करिएगा, क्योंकि जब आप बुक पढ़ेंगे तो कई बार क्या होता है ना कि यू विल कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ न्यू वर्ड्स, और वो न्यू वर्ड्स कैसे होंगे आपके आपके कि अब वो न्यू वर्ड्स के लिए आपको क्या करना है, रुकना नहीं है उस पर, उसको अंडरलाइन कर लीजिए, आगे चलिए, ठीक है ना। उन वर्ड्स का एक प्रॉपर आप एक नोटबुक बनाए उन वर्ड्स का लेकर के, ठीक है ना। उस वर्ड का मीनिंग समझिए, फिर उस पर्टिकुलर मीनिंग का सेंटेंसेस का करिए, उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है ना। तो एक बुक पढ़िए, जरूरी है ये, ठीक है ना। डेली 30 मिनट्स की रीडिंग आपको करनी होगी, ऑलराइट। दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। जो सेशंस हमारे चल रहे हैं वो तो चलेंगे चलेंगे, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट, regularly 30 minutes of reading of a particular book that is not that difficult a book to read, मीडियम लेवल की होनी चाहिए, इजी लेवल ऑफ इंग्लिश होनी चाहिए, ठीक है ना। उसको आप पढ़िए, जो वर्ड डिफिकल्ट लगे उनको साइड में अंडरलाइन कर लीजिए, बाद में आकर के उनको फिर से रिव्यू करिएगा, फिर उसका मीनिंग समझिएगा, ठीक है। उससे रिलेटेड कुछ भी अगर आपको इश्यू लगता है तो आप हमको बताइए, हम आपके पास हमारा मेल है, उस पर्टिकुलर मेल में पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वील ऑल्सो डू दैट, उसका छोटा सा एक सेशन उसी में मेल के थ्रू आपको पूरा समझा देंगे, और उससे रिलेटेड जो भी एसोसिएटेड वीडियो होगा वो भी हम आपको शेयर करेंगे, ठीक है ना। फिर आता है आपका, जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, कई लोगों ने मेरे को बोला कुछ बीटेक कर रहे हैं, कुछ कॉलेज में है, ठीक है। तो आपके जो क्लास के नोट्स है ना उनको लिखना शुरू करिए। जो क्लास में आपने बनाए थे वो तो थे ही थे, ठीक है, बट दोबारा से अगर लिखेंगे तो उससे दो फायदे हैं। पहली बात तो ये कि आपका प्रोसेसर स्टार्ट होगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि जब आप दोबारा से लिखेंगे तो आपके माइंड में उसका एक एम्बेड हो जाएगा, उस पर्टिकुलर वो टॉपिक आपके माइंड में बैठना स्टार्ट हो जाएगा, तो उससे आपकी लर्निंग और बेहतर हो जाएगी। वो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। प्लस जब क्लास में आप नोट्स बनाते हैं ना तो कई बार क्या होता है ना, क्लास का टाइम तो छोटा होता है, तो जल्दी जल्दी में लिखते हैं, ट्राई टू राइट एवरीथिंग फास्ट, ओके। उसमें क्या होता है, कई बार राइटिंग बहुत डिफिकल्ट होती है, रिटन चीज कुछ डिफिकल्ट होती है, उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको चीजें समझ में नहीं आती है। जब आप दोबारा से वही सेम चीज लिखते हैं तो क्या होता है कि आपके नोट्स भी क्लियर हो जाते हैं, नीट बनते हैं, और आपको चीजें और अच्छे से याद हो जाती हैं और क्लियर होती है माइंड में, ठीक है। फिर एक और चीज होती है कि आप जैसे कि अभी बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं इंग्लिश में, एजुकेशनल प्रोग्राम्स आते हैं, उनको देखिए, सुनिए उनको ध्यान से, ठीक है। और रेडियोस में आते हैं इंग्लिश का, उसको सुनिए, ध्यान से सुनिए, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ समझ में आ ही रहा हो, ठीक है। हो सकता है आपको 15-20%, 30% ही समझ में आ रहा हो, बट उससे क्या होगा कि आपकी जो आदत है, ठीक है ना, योर हैबिट ऑफ हियरिंग इंग्लिश इंप्रूव्स, ठीक है ना, एंड उसको अच्छे से रिलेट कर पाते हैं आप फिर, ठीक है ना। जो भी प्रोसेस हो रहा है इंग्लिश में, वहां जो बात हो रही है, जो वीडियो में चल रहा है, जो वो बोल रहे हैं, ठीक है ना, वो आपके माइंड में, दिमाग में आता है, आपके कान में, आप सुनने की एक आदत डेवलप होती है, ठीक है ना, एक आदत डेवलप होती है, ठीक है ना।
ये आप करिएगा। इसमें भी आपको कुछ वर्ड्स ऐसे समझ में नहीं आएंगे। कई बार क्या होता है ना कि डायलेक्ट कैसा होता है, आप बोलते कैसे हैं, वो भी बहुत मैटर करता है। तो ये जब आप देखेंगे तो उससे आपको इस पे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट पड़ता है। ठीक है, ये कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, ट्रिक्स हैं अगर मैं बोलूँ तो, जिनको अगर आप यूज करेंगे ना, अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट जो हम कर रहे हैं वो तो है ही है, ठीक है, बट ये कुछ ट्रिक्स हैं, अगर आप इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करना शुरू करेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर अब हम आते हैं एक चीज और पे। ठीक है, जैसे मैं अभी पहले ही बोल ही रहा था, प्रीवियस स्लाइड में मैंने क्या बोला था आपसे कि जब आप बुक्स रीड कर रहे हैं तो वहां पर क्या हो रहा है कि आपके पास जो वर्ड्स आ रहे हैं उनको लिखते जाइए, साइड में अंडरलाइन करिए, लिखते जाइए। ठीक है, उसी तरीके से कीप अ वोकैबुलरी नोटबुक इन अ सेपरेट नोटबुक फ्रॉम योर क्लास नोट्स। ठीक है ना, जो मैंने आपसे बोला था एक बुक बनाइएगा अलग, जो वर्ड्स आपको डिफिकल्ट पढ़ रहे हैं उनको अलग लिखते जाइएगा, उनका मीनिंग उनसे एसोसिएटेड सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो हमसे शेयर करिए, हम उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो उसी हिसाब से क्या है कि जब आप डेली आधा आधा घंटा रूटीनली अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है, तो अगर मान लीजिए छोटा सा चीज बता रहा हूं यहाँ पर, अगर आपके पास डेली 5 नए वर्ड्स मिलते हैं, ठीक है, 6 डेज अ वीक आप पढ़ते हो, 7th डे मैं कहता हूँ आराम करो। ठीक है ना, तो उसके हिसाब से कितना हो गया, 140 वर्ड्स, न्यू वर्ड्स एक महीने में। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इमेजिन करिए कि अगर 10 वर्ड्स अ डे अगर आपको मिल रहे हैं, यहाँ पे तो 5 वर्ड्स का मैंने बोला, एक महीने में 140 हुए, ठीक है, 140। 10 वर्ड्स अ डे आपको न्यू वर्ड्स मिल रहे हैं, तो आपके एक मंथ में 280 न्यू वर्ड्स हो जाएंगे। इमेजिन करिए 280 न्यू वर्ड्स। अब मैं बार बार वर्ड्स पे, वोकैबुलरी पे स्ट्रेस क्यों कर रहा हूँ? अगर अगर आपको समझ में आ रहा हो कि मैं बार बार वोकैबुलरी में क्यों स्ट्रेस कर रहा हूँ इतना, वर्ड्स पे क्यों स्ट्रेस कर रहा हूँ इतना, तो उसके पीछे रीजन है। और वो रीजन है ये कि एक सेंटेंस की जब हम बात करते हैं ना, सेंटेंस एक्चुअली में क्या है, एक सिक्वेंशियल फॉर्मेशन ऑफ वेरियस वर्ड्स इन अ कोहेरेंट एंड मीनिंगफुल मैनर, ये होता है सेंटेंस। ये मतलब एक वाक्य क्या होता है, वाक्य बोले तो सेंटेंस, सेंटेंस वो होता है जिसमें कि मल्टीपल नंबर ऑफ वर्ड्स होते हैं, उनका प्रॉपर प्लेसिंग होती है, जिससे कि एक कम्युनिकेशन, एक मीनिंग, एक प्रॉपर चीज सामने पहुंचती है, वो होता है प्रॉपर। ऑलराइट, तो इस तरीके से यह होता है। और फिर अपने लोगों के साथ में आप रूटीनली प्रैक्टिस करिए। ठीक है, बोलने का, रूटीनली बोलने का प्रैक्टिस करिए, इंग्लिश में बोलने का रूटीनली प्रैक्टिस करिए। ऑलराइट, क्योंकि आप जब तक ज्यादा बोलेंगे नहीं, ठीक है, तब तक आपको क्लैरिटी नहीं है कि उस तरीके से। ओके, स्पीक लॉट्स ऑफ इंग्लिश विद योर फ्रेंड्स। डोंट मैटर कि उसमें कितना सही जा रहा है कितना नहीं जा रहा है, बट द फैक्ट इज दैट योर हैबिट, एक एक आदत से डेवलप होगी आपकी इंग्लिश बोलने की। प्रॉब्लम इज दैट वी आर नॉट सो हैबिचुअल ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश, राइट, द इशू इज दैट ओनली। तो एक आदत डेवलप होगी जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ में इंग्लिश में बात करना शुरू करेंगे। गलत होगी कोई बात नहीं, फ्रेंड्स ऑलवेज आर देयर टू हेल्प यू। ठीक है, तो कोई बात नहीं, गलत बोलेंगे कोई बात नहीं, करेक्शंस होते रहेंगे, लेकिन बोलना मत छोड़िएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। सबके साथ भी नहीं बोल रहे तो कुछ एक आपके बहुत खास फ्रेंड्स होंगे, उनके साथ में आप इंग्लिश में ही बात करिए। टूटी फूटी होगी बात करिए, बट करिए। ओके, ये बहुत बड़ी चीज है जो सामने लिखा है। मेरे ख्याल से ये तो मैं सिर्फ इंग्लिश के लिए बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये ओवरऑल इन लाइफ की बात कर रहा हूं। थिंक पॉजिटिवली। ठीक है, अगर आप पॉजिटिवली नहीं सोचते हैं ना तो बहुत सारी चीजें गलत हो जाती हैं। आपको अपने मन में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि मैं जैसे बोलता हूँ ना, एक चीज होती है, वो इंसान जो कहता है कि हाँ मैं कर सकता हूं, और वो इंसान जो कहता है हाँ मैं नहीं कर सकता, दोनों सही है। जो बोल रहा है हाँ मैं कर सकता हूं, वो बहुत स्ट्रांग है मेंटली, बहुत पॉजिटिव, वो बोल रहा है हाँ मैं करूंगा, मुझसे होगा, मैं करूंगा। और दूसरा इंसान जो बोल रहा है मुझसे नहीं हो सकता, वो भी बहुत, मैं क्या बोलूंगा, वो दूसरे तरीके से पॉजिटिव है। उसे पता है वो नहीं कर सकता, उसे इतना भरोसा है अपने आप पे, वो नहीं कर सकता इसलिए वो नहीं करेगा। तो इन अ सेंस बोथ ऑफ देम आर राइट। अभी ये बेसिकली इंग्लिश का एक बहुत बड़े स्पीकर रहे, उन्होंने बोला था, a person who thinks he can and a person who thinks he can't, both of them are right.
ये इसी का हिंदी में ट्रांसलेशन है कि जो सोचता है मैं कर सकता हूं और जो सोचता है मैं नहीं कर सकता, दोनों सही है, क्योंकि दोनों ने अपने माइंड में पिक्चर बना रखी है कि मैं कर सकता हूं, और एक ने बना चुका है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो नहीं कर पाएगा। तो थिंक पॉजिटिवली, बी पॉजिटिव, ऑलराइट, बी कॉन्फिडेंट। कई बार क्या होता है ना, आपका कॉन्फिडेंस होता है जो सामने वाले को अच्छा लगता है, इस वजह से भी कई बार होता क्या है कि जब आप जाते हैं जॉब इंटरव्यूज में जाते हैं, या फिर जब आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस जो होता है, जो आपकी पॉजिटिविटी होती है, वो आपके मन चाहा जॉब और मन चाही नौकरी दिलवाती है। क्योंकि कई बार सामने वाला ये देखता है कि अगर सामने वाला बंदा कॉन्फिडेंट है, वो पॉजिटिव है, तो वो उस पर ज्यादा भरोसा करता है रादर देन उस पर कि जिसके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है लेकिन वो नेगेटिव पर्सन है, इज नॉट दैट कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि योर पॉजिटिविटी एंड योर कॉन्फिडेंस टेक्स यू टू प्लेसेस दैट यू वुड हैव नेवर इमेजिन्ड। ठीक है, तो थिंक पॉजिटिवली। ओके, और एंड ऑफ द डे मैं क्या बोलता हूं, सबसे बड़ी बात तो कहना, किसी भी चीज से डरना नहीं चाहिए। अभी लाइव क्लासेस हो रही हैं, लाइव सेशन चल रहे हैं, आपको कोई चीज पूछनी है, आप तुरंत चैट बॉक्स में जाके पुट अप कर दीजिए अपना रिक्वायर्ड क्वेश्चन। ओके, सो दैट कि आपकी कम से कम आदत हो, स्टार्ट क्वेश्चनिंग। इफ यू डोंट क्वेश्चन यू विल नेवर कम टू नो अबाउट द आंसर्स। ठीक है, क्वेश्चंस हैं तो आंसर्स हैं, आंसर्स की वजह से क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है ना, आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर मिलेगा, आप चुपचाप बैठे रहेंगे कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बी कॉन्फिडेंट, थिंक पॉजिटिवली, क्वेश्चंस आ रहे हैं पुट अप करिए इसमें। ठीक है, हमसे बात करिए। ठीक है, और ये सेशन का हमारा छोटा सा एंड है, बट हाँ एक चीज और बता दूं, अभी जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम प्रॉपर, ये छोटा सा बस खाली एक इंट्रोडक्टरी सेशन था जिसमें कि हम आपसे क्या बता रहे थे कि क्या क्या चीजें हैं हमारे साथ, क्या क्या चीजें हम करेंगे। ठीक है, और क्या क्या हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अभी एक चीज मैं आपसे, एक और चीज मैं बोलूंगा आपको, यहाँ पर मैं आपके साथ एक चीज पुट अप कर रहा हूँ, उसको बस जरा सा आप लोग जरा समझिएगा। ओके, अभी सेशन को मैं ओपन कर रहा हूं डिस्कशन के लिए। ठीक है, तो आप लोगों की जो भी क्वेरीज होंगी ना, प्लीज चैट बॉक्स में डालिए। सेशन में क्या क्या होगा वो मैंने आपको बताया, कि जो क्वेरीज है वो प्लीज चैट बॉक्स में डालिए। ये बाइलिंगुअल सेशन है तो ऐसा नहीं रहेगा आप लोगों को, ठीक है ना, कि सिर्फ द सेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश ओनली। ऑलराइट, इट विल बी अ ब्लेंड ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, जिससे कि सबको प्रॉपर्ली समझ में आए। ठीक है ना, तो आप लोगों के जो क्वेश्चंस हो वो प्लीज यहाँ पे चैट बॉक्स में पुट अप करिए। ठीक है, कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, कोई कंफ्यूजन हो, प्लीज। और मैं प्लीज रिक्वेस्ट ऑल जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज बी एक्टिव। ओके, क्योंकि ये जो एनर्जी आपकी है उसकी वजह से ही हमारी एनर्जी बनती है। ओके, हमारी जो एनर्जी वो सो है जो है। ओके, बट यू आर द मेन एनर्जी सोर्स। No issues. Maya has said that you have missed in between. No issues. You all the students who have enrolled for the course will be sent video recording of the same, so you can actually in your own comfortable time go through the whole video and see wherever you have missed. Okay. सेशंस का कोर्स कैलेंडर आप लोगों को मेल कर दिया जाएगा। ओके, टाइमिंग्स को लेकर के हमने एक क्वेश्चन यहाँ पुट अप किया था, इसके लिए भी आपके पास एक मेल आ जाएगी फॉर ऑल दोज हु आर प्रेजेंट ओवर हियर कि आप लोग सेशन में कौन सा टाइम बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। ओके, और एक चीज और है यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये फ्री कोर्स है, ठीक है, इसमें आपको कोई फीस तो चार्ज करी नहीं जाएगी। ठीक है ना, बट यही है कि आपकी जो नॉलेज है उसका रिकॉग्निशन अगर आपको चाहिए, अगर आप चाह रहे हैं कि आपको रिकॉग्निशन चाहिए, तो उसके लिए हमारा पेड कोर्स है।
ठीक है, जिसका लिंक आप लोगों को मेल पे ऑलरेडी भेज दिया गया है, हम फिर से भेज देंगे अपने एंड से, ठीक है, जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का सर्टिफाइड कंटेंट मिलेगा आपको, ठीक है, सर्टिफिकेट के साथ कि हाँ आपने एक बेसिक कोर्स किया था और आपने अच्छा कोर्स किया था, वो अच्छे से पढ़े थे, तो उसी के लिए आपको कुछ इस तरीके का एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ये एक सैंपल सर्टिफिकेट आपके सामने शो कर रहे हैं हम, कि जो सर्टिफिकेट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। इसका एक अलग चार्ज है। अब क्योंकि ये एक्चुअली में अदरवाइज था तो ऑलमोस्ट 2000 रुपीज का पर्टिकुलर कोर्स है पेड वाला, ठीक है, 1999 का, बट क्योंकि ये इनॉग्रल कोर्स है, जो हमारा पेड सर्टिफिकेट कोर्स है, ये एक इनॉग्रल कोर्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड कोर्स है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी से सर्टिफाइड कोर्स है। ये पर्टिकुलर कोर्स आपको इनॉग्रल ऑफर में 999 ओनली का ही पड़ेगा, ठीक है। ये पर्टिकुलर कोर्स आपको जो अदरवाइज 1999 का पड़ता, ये आपको 50% ऑफ पे पड़ रहा है 999 रुपीज का। सबसे बढ़िया बात क्या है इस पेड कोर्स की, सर्टिफिकेट प्रोग्राम की कोर्स की, कि आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलता है इस पर्टिकुलर कोर्स का, जिसको कि आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत वैल्यूएबल है। मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी से अप्रूव्ड कोर्स है ये, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से अप्रूव्ड कोर्स है ये, ठीक है, जिसको कि आप कहीं पर भी आपकी प्रोफेशनल उसमें या फिर आपके एजुकेशनल उसमें यूज कर सकते हैं। आगे जहां पर भी आप जाते हैं फ्यूचर के लिए आपके बहुत हेल्पफुल रहेगा ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेट प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम जहां पर अभी हम लोग बैठे हैं, ये तो एक फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, ठीक है, इसका कोई चार्ज नहीं है आपसे। हाँ, बस एक ही चार्ज है आपसे, वो है उसका एफर्ट, कि आपको एफर्ट लगाना है इसमें, आपको क्लासेस में प्रेजेंट होना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर क्लासेस अटेंड नहीं करेंगे आप, जो लाइव सेशन है वो अटेंड नहीं करेंगे, तो आप लोग बहुत सारी चीजें मिस कर जाएंगे। इसलिए सेशंस अटेंड जरूर करिएगा, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। सर्टिफिकेट प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट क्या है? अपार्ट फ्रॉम द एफर्ट दैट यू विल पुटिंग इन, एक छोटा सा फाइनेंशियल एफर्ट भी होगा जो आपको पुट इन करना होगा, क्योंकि ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, देयर आर लॉट मेनी थिंग्स इन्वॉल्वड इन इट, ठीक है, क्योंकि एमएचआरडी की इसमें बात आ रही है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की इसमें बात आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सर्टिफिकेट की कॉस्ट है, सर्टिफिकेट ऑफ सीरियसनेस है बेसिकली, ठीक है। ये सर्टिफिकेट उन्हीं लोगों को, उन्हीं सीरियस लोगों को मिलेगा जो लोग इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है, एनरोल करेंगे इस पेड कोर्स के लिए, उनको ये सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा, ठीक है। एफर्ट तो आप करेंगे ही करेंगे, वो चाहिए। तो ये बेसिकली एक तरीके से समझ लीजिए सर्टिफिकेट ऑफ सीरियसनेस है, सर्टिफिकेट ऑफ इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, जो आप करेंगे। तो ये आपको इस पर्टिकुलर पेड कोर्स में एंड होने के बाद कंप्लीशन का ये मिलेगा। इसमें छोटा सा एग्जाम भी आपको होगा, ठीक है, उसको आप अच्छे से पास करेंगे, और गारंटी हमारी है, क्योंकि हम जिस तरीके से आपको पढ़ाएंगे आपको सब चीजें प्रॉपर्ली समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर कोर्स पेड है, इसका लिंक्स भी आपके पास शेयर कर दिया जाएगा, हमारा स्टाफ की तरफ से आपके पास आएगा मिलनाइट से। तो इस पर्टिकुलर कोर्स को एनरोल करिएगा आप लोग जरूर से, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त कोर्स है। कोई भी इस वक्त ई लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कोई भी आपको कोई सर्टिफिकेट प्रोग्राम नहीं दे रहा है। जो भी लोग दे रहे हैं वो सब ऐसे ही है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से सर्टिफाइड कोर्स कोई नहीं दे रहा है। अगर दे रहे होंगे तो बहुत कम दे रहे होंगे, ठीक है, बट वी आर द वंस हु आर एक्चुअली गिविंग इट। सो आप लोग जिनको कि एक सर्टिफिकेट चाहिए कि हाँ मैंने ये पर्टिकुलर कोर्स किया था एंड आई हैव secured good percentage in it, you must enroll in this particular paid course, ठीक है, क्योंकि ये आपको सर्टिफिकेट ऑफ नॉलेज भी दे रहा है कि आपको ऐसा पता हो। ये सिर्फ सर्टिफिकेट है, ये बहुत ही वैल्यूएबल है, ठीक है। सीधी सी बात है, जहां पर आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट आ जाता है वो ऑटोमेटिकली बहुत वैल्यूएबल हो जाता है, ठीक है। तो ये कितनी वैल्यू ऐड करेगा आपके ओवरऑल प्रोफाइल को, आपके ओवरऑल सीवी को, ठीक है। आप फ्यूचर में कहीं भी जाएंगे तो ये सर्टिफिकेट की वैल्यू रहेगी आपके पास, ठीक है ना। ये एक सर्टिफिकेट ऑफ नॉलेज, सर्टिफिकेट ऑफ सीरियसनेस है आपके लिए, जो कि सामने वाला देखेगा और उसको अप्रिशिएट करेगा और अकॉर्डिंगली आपको उसकी वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। तो ये पर्टिकुलर चीज आपके लिए मैंने बताई है। एंड थोड़ा सा किसी ने मेरे को कुछ लिखा है यहाँ पर, नेक्स्ट सेशन यू कैन एक्सप्लेन इन इंग्लिश बिकॉज इफ वी अफ्रेड ऑफ ट्राइंग इट टुडे वी कांट explain everything in Hindi. See, Shirisha, okay, Shirisha has made a very valid point that because you had I see the whole course will be a bilingual course, okay.
So there will be a blend of English and Hindi into it. So whatever I would have said in Hindi would have definitely been said in English earlier. Okay, so it will be a vice versa thing. कि यहाँ पर wherein there will be a part communication in English, a part communication in Hindi. Okay, so it's good that you have brought this point up, because we are so, I mean, we always get so energized whenever we see students putting in their thoughts and their queries immediate there and then, because it makes us feel that okay, yes, the session is going as we had planned, and all the students who are logged in are actively participating in the session. All right, so it will be a bilingual course, no doubt about it. And for those who would have any kind of a problem, say if I were to say anything in Hindi, because we want to communicate to a larger audience, and we don't expect everyone to be a top shot in this particular language, but then we also expect that you all to do well and be proactive and actively involved in the live sessions. All right, so so with this I'll conclude the session, but before concluding this session, I will again reiterate on the point that all of you, please key in your queries, make the best use of the available learning module, use the available resources to the best possible thing. And there is that discussion tab that we had discussed about earlier. Make the best use of it. Whatever be the kind of query or whatever that is, that may be, just put it into the discussion forum and we'll connect with you. And one more thing about the timing. A lot of people have had this issue with the timing thing, that they don't want the session to be conducted at 11 a.m. So we will respect your opinions, but we also expect this, that you key in your timings, all right, that what time should the live session be conducted. So kindly put in your responses through the mail that you would have got already. And even if you don't, then we'll send a mail from our side. We'll be putting up some slots of time. Okay. So, and on the basis of that, the highest number of response for a particular time slot will be used as the main time slot for the live sessions in the future sessions. All right. So this being it will be like a kind of it will be a 30-day continuous course. Okay. So there will be no missing in between. So the process will be पूरा 30-day का course होगा ये, ठीक है ना. इसमें आपके live sessions होंगे हफ्ते में 2 बार, ठीक है. और टाइमिंग्स का जो रही बात, जो मैंने अभी बोला था, फिर से हिंदी में बोल दे रहा हूँ बाकी लोगों के लिए, कि आप लोगों को एक मेल पहुंचेगा, उस मेल में डिफरेंट टाइम स्लॉट्स के बारे में लिखा होगा. उनमें से जिस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट को ज्यादा वोट्स मिलेंगे डेमोक्रेटिकली, हम उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट को सिलेक्ट कर लेंगे लाइव सेशंस के लिए. Okay, so with this I conclude the session, and you will be sent a recording of the same in your inboxes along with the time slots, the best time slots for the live sessions. Okay, because we want to cater to a larger audience. ऐसा भी नहीं हो, we don't want that कि in a particular session there are very few number of students present. We want maximum and full involvement from all of you. Okay, so you will be sent an video email of this particular session along with the various time slots wherein you can select which particular time slot you want the live sessions to be happening, and on the basis of that the time slot which has got the maximum number of responses will be selected as the live session time. Okay, so with this I conclude, and really thankful for all of you who had logged into the session. It was great to see you all, and we'll see you all in the next live session. That will and you will be sent a mail for that in your inboxes. All right then. Okay. Thanks all. Have a great day.